polling for the Rajya Sabha taking place in 4 states of Maharashtra, Haryana, Rajasthan and Karnataka. And now if we talk about Rajasthan, there's been a controversy over a BJP MLA from Dholpur, Shobha Rani Kushwaha, casting her vote. Sources claiming that she was cross-voting. And another MLA, Rajendra Rathore, another leader there, Rajendra Rathore, held her vote back. And now Subhash Chandra, who is contesting that and hoping to get a seat there and eat into Congress's share of votes. Subhash Chandra has asked the returning officer to declare her vote invalid on grounds that her vote had been held. The poll observers are not supposed to hold an MLA's vote in hand. So Subhash Chandra, they're asking it to be declared invalid. NDTV's Harsha sent us this report. Well, in the Vidhan Sabha in Rajasthan, a lot of controversy over the voting by one BJP MLA from Dholpur, Shobha Rani Kushwaha. And there are allegations and sources are telling us that she cross-voted in favor of the Congress. We are also being told that the BJP president in Rajasthan told us that apparently Rajendra Rathore, who's the polling agent, he tried to hold her hand or hold that vote that she was about to cast, and because of that, Subhash Chandra has asked the returning officer to declare that vote invalid. So controversy over the voting by one BJP MLA. Now here it was that one was thinking that the Congress's numbers would fall short, but it seems that the cross voting has happened from the BJP camp. And RLP leader Hanuman Beniwal, who's supporting Subhash Chandra, has of course said that has made allegations of horse trading against the chief minister, and he has said that it's they're blaming the BJP, but actually it's the Congress which is doing the horse trading. So controversy over Shobha Rani Kushwaha's voting in that assembly. Voting is still on and will end at 4 p.m. बीजेपी के पास में जीतने के लिए बहुमत के एक सदस्य का बहुमत था। 30 वोट हमारे स्पेयर थे, उसके लिए हमने चंद्रा जी को समर्थन दिया। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं थे, उन्होंने गुजारिश की थी और उनको हमने समर्थन दिया। उनको समर्थन आरएलपी ने भी दिया। उन्होंने निर्दलीयों से भी और दूसरी रीजनल पार्टी से भी अपील करी थी। हमने भी करी थी कि उनको राजस्थान की सरकार के खिलाफ किसान कर्जा माफी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, ये सारे मुद्दे जिसके हर विधायक के क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, सरकार को चोट पहुंचाने का यही तरीका है। I have with me Sachin Pilot. He's just voted and cast his vote and come out. Sachin, this election has been quite interesting. You've had, I think, a few moments where some BSP MLAs went for a tiger safari. Then you had a lot of people falling ill. We are not sure whether the BTP were coming. How is the bigger picture looking for you now? No, I think it's very clear. We have more than 125 MLAs who are supporting all our 3 candidates. See, it's a pure number game. So if you have number of MLAs, you can put up candidates. BJP had enough to get 1 MP elected. They put up 2. But this evening it will be very clear. But I think in Rajasthan, in Haryana and even in Maharashtra, the BJP has tried to put more candidates just to force an election. Be that as it may, all our MLAs are with us, our supporting parties, our regional parties, independents. They have been supporting us for 3.5 years, and there is no reason why will they not vote for a candidate. They've said so in public and in private. So by the evening when the counting happens, you'll realize that we've got more votes than what we were expecting to get. The way you vote in a Rajya Sabha election is quite interesting. You have to show it to the poll observer. In this case, you have the Chief Minister himself sitting there. Do you think it was a little intimidating for some MLAs? No. It's like having a school principal. Any Chief Minister is first leader of the legislative party. And as leader of the legislative party, it is that person's responsibility to make sure that things happen. So I see nothing wrong in the leader of the legislative party being there as polling agent, because we're all ultimately party people and we have to make sure our party candidates win. So despite all the pressures and all the the माहौल जो क्रिएट करने की कोशिश की है, despite that we will win with, like I said, more than expected votes. And Mr. Subhash Chandra making those very startling allegations, he said that 4 Congress MLAs will cross vote for him. So you should say which those MLAs are, and if they're going to vote for him, then why would they vote for him? So I think it's a very open invitation to sort of allurement and encouraging of horse trading, which is not a healthy sign. But like I said, I mean, he's free to contest, but by evening everything will be put to rest. वोटिंग खत्म हो चुकी है। मेरे साथ है राजेंद्र राठौर जी, डेप्यूटी लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी हैं और इस चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभाई थी, पोलिंग एजेंट थे। राजेंद्र जी, अभी चुनाव खत्म हो गया है, कैसे गया है? और एक हमने सुना है कि एक बीजेपी के एमएलए के वोट को लेकर कुछ बवाल, कुछ कंट्रोवर्सी खड़ी हुई है। देखिए, चुनाव को संभावनाओं का खेल कहा जाता है। संभावनाएं
कुछ भी हो सकती है, परंतु जिस प्रकार इस बार सत्तारूढ़ दल ने नंगा नाच किया, निर्लज्जता से किया, येन केन प्रकरण अपनी कुर्सी बचाने के लिए, आलाकमान को ये सिद्ध करने के लिए कि मैं ही तीनों आदमियों को भेज सकता हूं, मुख्यमंत्री जी ने तमाम वो काम किए जहां एक और प्रतिपक्ष को डराने की कोशिश की, मुकदमे में, झूठे मुकदमे और पुराने मुकदमे में वारंट जारी करा के, वहीं मुख्यमंत्री जी ने निर्दलीय लोगों को और छोटे दलों के लोगों को जो प्रलोभन दिए हैं वो अब सामने है। मैं समझता हूं इस प्रकार मुकदमे वापस करने की बात भी कर ली, खान आवंटन करने की बात भी कर ली, स्थानांतरण का एक के बाद एक स्थानांतरण हाथों हाथ करने का काम भी कर लिया, और जिस प्रकार धन का खेल किया गया है, गांधीवादी मुख्यमंत्री जी का असली चेहरा सामने आ गया। राजेंद्र जी, आपके जो एक एमएलए हैं, जो धौलपुर से एमएलए हैं, शोभा रानी कुशवाहा, बताया जा रहा है कि उनका वोट कुछ गलत डल रहा था और आपने वो वोट पकड़ लिया और सुभाष जी ने उसमें रिटर्निंग ऑफिसर को कंप्लेन कही है, तो ऐसा कुछ हुआ क्या वहाँ? देखिए, चूंकि अभी कंप्लेंट सुभाष जी की, रिटर्निंग अफसर उस पर निर्णय करेंगे, पर निश्चित तौर पर विवाद जरूर हुआ था और वो सारा कैमरे में कैद है। हमने कुछ ऐसा नहीं किया जो हमें नहीं करना चाहिए। पर उन्होंने कुछ क्रॉस वोटिंग कुछ करी थी? जो हमने अधिकृत किया था वो उन्होंने वोट नहीं किया था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राजेंद्र राठौड़ जी बता रहे थे कि उन्होंने वो वोट पकड़ा नहीं, लेकिन जो उन्होंने अधिकृत किया था उनको करने के लिए, वो वोट उन्होंने नहीं किया। बहुत बड़ी बात है, यानी कि बीजेपी के एक एमएलए ने किसी तरह से ऐसी वोटिंग करी है जिससे बीजेपी के जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको नुकसान पहुंचाया है। तो अब एलिगेशन है कि एक बीजेपी का वोट ही गलत गया है। मेरे साथ है हनुमान बेनीवाल, आरएलपी के लीडर हैं और उन्होंने सुभाष चंद्रा का सपोर्ट किया था। हनुमान जी, ये बताइए अंदर क्या हुआ? देखिए, बीजेपी के भरोसे सुभाष चंद्रा चुनाव लड़ना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पहले से स्टैंड था, न हम कांग्रेस के सिंबल पे वोट डालेंगे न भाजपा के सिंबल पे डालेंगे। और चूंकि ये निर्दलीय थे और राजस्थान मूल के थे, तो दोनों बातें हमें शूट करती थी। और आरएलपी पार्टी के तीनों विधायकों ने सुभाष चंद्रा जी को जैसे हमने निर्णय लिया, हम बाड़ाबंदी में नहीं कि हमारे घर पे थे, 3 ही विधायक राजस्थान में थे तो अपने घरों पे थे, बाकी 197 विधायक रात तक सारे बाड़ाबंदी में पहुंच चुके थे। दुर्भाग्य इस बात का कि राजस्थान बहुत बदनाम हो गया, हॉर्स ट्रेडिंग और कभी सरकार गिराने से लेके कभी एलिफेंट ट्रेडिंग, क्या क्या आरोप राजस्थान लगे, बाड़ाबंदी में राजस्थान के अंदर हमने देखी। लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ, वो भी धौलपुर के यहाँ से हुआ, कनेक्शन शोभा रानी का धौलपुर से हुआ आती है। और वसुंधरा गहलोत के गठबंधन के दोनों को मिलाजुली के मैं रोज आरोप लगाता हूं। अभी महेश जोशी से लेकर तमाम, चाहे महेंद्र चौधरी का मामला हो, चाहे मलिंगा का हो, चाहे विदुड़ी का हो, चाहे जोरीलाल मीणा के बेटे का हो, इसमें बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं लेना। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता का नहीं बोलना इस ओर इंगित करता कि कांग्रेस भाजपा मिले हुए। और ये हमने अंदर देखा कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की शोभा रानी वोट देके जाती है कांग्रेस उम्मीदवार को, राजेंद्र राठौड़ ऑब्जेक्शन करते हैं, सुभाष चंद्रा ऑब्जेक्शन करते हैं, लेकिन वोट देके वो निकल जाती है खुला। आप बताओ, चैलेंज देके क्या आप दम है तो कर लो। तो हॉर्स ट्रेडिंग मुख्यमंत्री आरोप लगा रहे हैं सुभाष चंद्रा और बीजेपी पे, लेकिन मुख्यमंत्री ने करवा दी हॉर्स ट्रेडिंग। और इसके पीछे मुझे लगता है कि वसुंधरा जी इन लोगों का निश्चित रूप से हाथ है, क्योंकि गहलोत वसुंधरा के मिलाजुली का खेल पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश जानता है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो आरोप लगा रही है, आज वो सत्यता साबित होकर काउंटिंग के बाद पता लगेगा कि अभी और क्या क्या हुआ अंदर, वो काउंटिंग के बाद ही पूरी बात का पता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हनुमान बेनीवाल, जो आरएलपी के लीडर हैं, बात कर रहे थे एनडीटीवी से।